Let's all be seated. Praise be to God's name. Now, most of the time, what happens? Believers, they get up and go from the presence of God, and children, they see them and they also get up. अधिकतर समय क्या होता है कि विश्वासी लोग उठ के परमेश्वर की हज़ूरी से बाहर चले जाते हैं, बच्चे लोग उनको देखते हैं और उन्हीं का अनुकरण करते हैं। So all the teachers must raise up your hands. Sunday school teachers, संडे स्कूल अध्यापक लोग अपना हाथ उठाइए, where they are seated. कहाँ पे बैठे हैं? Teachers. केवल अध्यापक लोग। What is use of sitting upstairs? ऊपर बैठने का क्या कारण है, क्या उपयोग है? अर्थ क्या है? When all the children they are sitting down, you must come down. Teachers in sister side also, brother side also. From the next week, you must, two of the teachers, they must sit here and you must control the children. You must be careful about them, whether they are closing their eyes, they are worshipping, or they are singing songs, and don't let them to go out. अगले हफ्ते से दो अध्यापक लोग इन दो पहले No, from brother side also, from sister side also, same thing. ब्रदर साइड से भी सिस्टर साइड से भी दो अध्यापक लोग बच्चों लोगों के बीच में बैठेंगे, देखेंगे कि वो आंख बंद कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आराधना ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको ध्यान दें, So this is the age to teach them. और यही उनका काम है कि उनको सिखाएं। The Sunday school teachers and all the Sunday school children, also youths, they must not sit in the balcony. संडे स्कूल के बच्चे लोग, संडे स्कूल के जवान लोग वो पीछे की पंक्तियों में ना बैठे, नहीं, ऊपर नहीं बैठना. ऊपर नहीं बैठना। टीचर्स लोग ऊपर और जवान लोग और संडे स्कूल के बच्चे, कोई भी ऊपर नहीं बैठना, सब लोग नीचे आके बैठना. Earlier also I've announced this thing, so but most of us we have tendency not to listen. पहले भी मैंने इस बात को बोला है, लेकिन हम में से कईयों का ये इस तरीके से मानसिकता है कि हम सुनते नहीं हैं। So from the next week, no teachers, no youths, and also Sunday school teachers, they must sit in balconies. कोई भी संडे स्कूल का बच्चा या जवान या फिर अध्यापक लोग ऊपर बालकनी में नहीं बैठेंगे। And after this meeting, we'll have a Sunday school. इस मीटिंग के पश्चात हमारे लिए संडे स्कूल है। And Wednesday morning fasting prayer and evening Bible study will be there. बुधवार के सुबह हमारे लिए उपवास प्रार्थना और शाम को बाइबल अध्ययन होगा। Tarry meeting morning fasting prayer and evening tarry meeting. और शनिवार को सुबह हमारे लिए उपवास की प्रार्थना और शाम को हमारे लिए बाट जोड़ने की And आराधना है। Sunday as usual 8 o'clock we'll commence our meeting. और जैसा चला आ रहा है, संडे के इतवार की सभा सुबह 8 बजे आरंभ होगी। Also I would like to tell you about the area prayer. I believe that all the areas they are conducting the prayers regularly. और एरिया प्रेयर के बारे में सूचना देना चाहता हूं कि मैं विश्वास करता हूं हर एक एरिया में जैसा चलता आ रहा है, लगातार प्रार्थना सभाएं चलाई जा रही If there हैं। is any area who is not conducting the prayer, कोई भी एक ऐसा एरिया है जो प्रार्थना नहीं चला रहा where है, this prayer is not going on, जहां पर एरिया प्रार्थना नहीं हो रहा है, brothers area, आपका भी, what is the reason? क्या कारण है? So whatever the reason is, you must tell me after the meeting and rectify that, and please continue with the area prayer. जो भी कारण है, मीटिंग के पश्चात आप मुझसे मुलाकात कीजिए और मुझे बताइए कि क्या कारण है, उसको ठीक करके दोबारा से आप पुनः एरिया प्रेयर को आरंभ करें। Whatever is needed, we'll do accordingly. जो भी जरूरत होगा हम उसके आवश्यकता के अनुसार करेंगे। Area prayers, it must continue everywhere in each and every areas. एरिया प्रेयर लगातार हर एक सप्ताह में चलाया जाना जरूरी है। And also in the coming days, let this heat wave decline, and I'm planning to start the cottage meeting also. आने वाले समय में जैसे ही भीषण गर्मी थोड़े कम होगी, उसके बाद मैं कॉटेज मीटिंग भी शुरू करने जा रहा हूँ। So I myself will go and conduct these cottage meetings. कॉटेज मीटिंग के लिए चलाने के लिए मैं खुद आऊंगा। Like area prayers, in some areas we'll conduct the meeting in one house. We'll call all the believers, those who are nearby, and we'll conduct these cottage meetings. वैसे ही एरिया प्रेयर में एक एक एरिया में हम जाएंगे, वहां पर सभी विश्वासी आसपास जो रहते हैं उनको बुलाएंगे, कॉटेज मीटिंग चलाएंगे। But if that area prayer is not going on in your areas, then the cottage meeting will not be given to you then. यदि एरिया प्रेयर आपके एरिया में नहीं हो रहा है, आपकी जगह में, तो आपको कॉटेज मीटिंग नहीं मिलेगा। So if you want the cottage meetings to be held in your areas, this area prayer must go on smoothly. यदि आप चाहते हैं कॉटेज की मीटिंग आपके एरिया में हो, तो जो एरिया प्रेयर पहले चल रही थी वैसे ही लगातार चलनी आवश्यक So है। whatever the hindrances are there, you must tell us, and we'll accordingly help you
to conduct these area prayers. जो भी रुकावट है आप हमसे बताइए, उसको ठीक करने के बाद लगातार एरिया प्रेयर को चलाना है। And God willing, this coming 23rd of this Sunday, we'll have a youth meeting here. और प्रभु की मर्जी हुई तो आने वाले 23 तारीख को संडे को यहाँ पर जवानों की सभा होगी। So God should take all these ministries in His hand. God should bless it. Shall we all praise God? परमेश्वर इन सारे सेवकाओं को अपने हाथों में उठा के उनको आशीष करके चला के देने के लिए मिलकर हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. And one more request I would like to make मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता for हूँ। all the senior believers and elders, those who are here, and all the parents. You must cooperate with us in order to groom your children in spiritual way. सारे सीनियर विश्वासी और जो बुजुर्ग लोग हैं और उन सब से निवेदन करता हूं कि आप सारे माता पिता से भी कि अपने बच्चों को, जवान लोगों को आत्मिक जीवन में ऊपर बढ़ाने के लिए आप भी सहयोग कीजिए। If you are not encouraging them, and if you are not cooperating with us, your youths will be lying this in this state only. यदि आप अपने बच्चों को, जवान लोगों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इसी स्थिति में, इसी दर्जे में दिखाई देंगे। Their mindset has need to be changed. उनकी मानसिकता बदलनी जरूरी है। So help us in spiritually also and physically also, in order to help them to grow in their spiritual lives. आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से उनकी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए हम चाहते हैं। हमारी सहायता सहायता you have to कीजिए। cooperate with us. हमसे सहयोग कीजिए। And also pray for the youths in these days, and also for the church, that God should send a great revival among us. इन दिनों में जवानों के लिए और हमारी कलीसिया में एक बहुत बड़ा बेदारी परमेश्वर भेजना चाहिए, उसके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। We are lying very low. हम बहुत ही निचली दर्जे में हैं। God must bring us to the above experience. परमेश्वर हमें ऊंचे के अनुभव में लेके आना There is चाहिए। lot to explore in our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में अभी बहुत ही चीजें खोजना है। There is lot that we need to know in our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में और भी जानना है। So God should help us in these days to explore all this spirituality. Riyam, in these days shall we all praise God. परमेश्वर इन दिनों में और भी अधिक आत्मिक जीवन में उन खोजने के लिए, और भी अधिक आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर से हमें मदद करना चाहिए। मिलकर हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise be to God's name. परमेश्वर नाम की तारीफ होवे। Once again we'll do Luke 12th chapter verse 35. आइए एक और बार लूका रचित समाचार 12वां अध्याय उसका 35वां वचन पढ़ेंगे। तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। Let your lines be girded about and your lights burning. Praise be to God's name. परमेश्वर नाम की तारीफ होवे। So we have been learning about this word from 3 weeks. हम पिछले 3 सप्ताह से इस वचन के आधार पर हम सीख रहे हैं। And God has enabled to learn so many things from His word. परमेश्वर ने अपने वचन से बहुत सारी बातें सीखने के लिए हमें मदद किया। Here Jesus says, let your lines be girded about. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारी कमरें बंधी रहें And let your lights be burning. और तुम्हारे दिए जलते रहें। So in these days we are learning about the advantages of lighting up these lamps in our life. हमारे जीवन में इस दिए को जलाने का लाभ के विषय में हम सीख रहे हैं। So there are two advantages that we receive in our spiritual experience. हम अपने आत्मिक जीवन के अनुभव में 2 बातों को हम लाभ उठाते हैं। When we light up this lamp, जब हम दिए को जलाते हैं 2 things happens in our life. हमारे जीवन में 2 बातें होती हैं। One, we receive back those things which we have lost. एक, जो हमने बातें नष्ट कर दी हैं, खो दिए हैं, उनको दोबारा पा लेते हैं। And secondly, by lighting up this lamp, we can secure our ways. और दूसरा, इस दिए को जलाने के बाद अपने मार्गों को हम सही कर सकते You know, हैं। when we see in our spiritual life, there are so many paths that are full of darkness, and we have to go through it. हमारे आत्मिक जीवन में देखने पे कई सारे ऐसे मार्ग हैं जो कि घोर अंधकार से भरे हुए हैं और उन्हीं मार्गों से हमें जाना होता है। And if we don't have these lamps in our life, we will not be able to go through that obscure darkness which we go through. और यदि हमारे जीवन में ये दिया जलता नहीं रहेगा तो इस घोर अंधकार वाले मार्ग में से हम जाना नहीं पाएंगे। It will be difficult for us to pass through that. और इस घोर अंधकार के मार्ग से जाना बहुत ही मुश्किल होगा। So these days we must light up our lamps, and this spiritual experience must be seen in each one of our life. इसलिए हम हर एक के जीवन में इन दिनों में ये दिए को जलाना और आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी बहुत ही आवश्यक है। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की So तारीफ by हो। lighting up this lamp, we can seek back those things which we have lost. दिए को जलाने के पश्चात हमारे जीवन में जो भी बातें हमने खो दी हैं उनको हम दोबारा ढूंढ सकते There are हैं। so many experiences that God gives us. हम परमेश्वर हमें बहुत सारे अनुभव देता है। That's very common in everyone's life. और ये बहुत ही
ही सामान्य है हर एक के जीवन में, God being faithful, He gives us so many blessings and spiritual experiences. क्योंकि परमेश्वर विश्वास से हो गया है, इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारी आत्मिक आशीषों को हमें देता है। But the thing is, we are not able to sustain that. We are not able to preserve those experiences. लेकिन हम उन जो अनुभव परमेश्वर ने दिया है उनको संभाल के नहीं रख पाते। Because of some of the other circumstances, we lose those blessings in our life. कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसी आती है कि उन कारणों से हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने अभ्यास दिया है उनको खो देते And you know हैं। what happens when we come to the presence of God, we find ourselves lacking and wanting. और जब हम परमेश्वर के हुजूर में आते हैं तो इन सारे अनुभवों से हम खोए हुए और छूटे हुए नजर आते हैं। We lack nothing in we lack those things from our life. और हम अपने जीवन से ये सारी बातों को खोए नजर आते हैं। What is the reason that God gives these experiences? क्या कारण है कि परमेश्वर ये अनुभव हमें देता है? That we may grow in our spiritual life. ताकि हम आत्मिक जीवन में That उन्नति we पाएं। may come to the standard which God has set for us. ताकि परमेश्वर ने जो हमें हमारे लिए दर्जा स्थिर नियुक्त किया है उस दर्जे तक हम पहुंच पाएं। And these spiritual experiences will help us to grow to that stature which God desires. और परमेश्वर जो दर्जे को चाहता है इन आत्मिक अनुभवों के जरिए उस परमेश्वर के दर्जे तक पहुंच सकते हैं। But dear ones, if we are not able to preserve it, लेकिन प्यारे लोगों, यदि आप उसको संभाल नहीं and पाएंगे, if we are a spoiler, यदि हम उसको खोने वाले हैं, if we नष्ट करने वाले हैं, if you are a great spoiler for the things of God, यदि आप परमेश्वर से जो मिला है उन सारी बातों को खोने वाले हैं, at the end day, तो अंत के दिन में we'll not have anything in our hand to meet our God. तो परमेश्वर से मुलाकात करते समय हमारे हाथों में कुछ भी नहीं होगा। You know, once a man, he was depressed in his mind. एक बार एक आदमी अपने मन में बहुत ही हताश हो गया। He had his own problems in his mind. उसके मन में उसकी अपनी समस्याएं थी And he was walking through the shore. और वो किनारे समुद्र किनारे चल रहा था। And it was a little dark. It was a kind of twilight. और वो एक थोड़ा सा अंधेरे का समय था। And it was evening. It was a little light was there, but it was getting darkness. शाम का समय था, अंधेरा छाने ही वाला था। And while walking on the shore, he saw one bag full of stones. और समुद्र किनारे चलते चलते उसे एक बैग मिला जिसमें बहुत ही सारे पत्थर भरे हुए थे। But he was full of his own thoughts. और वो अपने ही जो समस्याओं से अपने विचारों में भरा हुआ था। He was thinking about his own life, about his problems, about his job, about his family, and so on. अपने जीवन, अपने परिवार और अपने समस्याओं के बारे में वो सोचता ही चला जा रहा था। And when he saw that bag full of that stones, तुरंत वो उसने उस बैग को देखा जिसमें बहुत सारे जो पत्थर भरे हुए थे। he took that bag. उसने उस बैग को उठा लिया। One by one, he started throwing that stone in the water. एक एक करके उस पानी में एक एक पत्थर को फेंकने लगा। Kept on walking and throwing the stones in the water. चलता रहा और पत्थरों को पानी में फेंकता रहा। And at last, it was the time to reach his home. And there was only 2 or 3 stones left in his hand. और आखिर में अपने घर पहुंचने ही वाला था, उसके हाथ में 2 या 3 पत्थर बाकी थे। And when he came back to his house, और जब वो अपने घर में वापस आया, when he came in the light, और जब वो रोशनी में आया, and when he saw his hands, और वो अपने हाथ को देखा, it was not stones, it was all pearls. और वो उसने देखा कि वो पत्थर नहीं थे, वो मोतियां थी। It was all pearls he was carrying in his hand. और उसके हाथ में जो वो उठा के चल रहा था वो सारी मोतियां ही थी। But what he did? लेकिन उसने क्या किया? He wasted he became a spoiler and he wasted all the pearls which he found there. क्योंकि वो नष्ट करने वाला बन गया और उसके हाथ में जो उस बैग में उसको मोतियां मिली थी सबको उसने नष्ट कर दिया। This is what we are doing in these days. और यही हम अपने जीवन में इन दिनों में करते हैं। Knowingly or unknowingly, we are doing the same thing. जाने में अनजाने में यही बात हम भी करते हैं। These are the days which works as a pearls for us, and this is a time that we need to prepare ourselves, but we are spoiling it. और ये दिन हमारे लिए एक मोती के समान है और इन दिनों को हम नष्ट कर देते हैं। These are the times when we need to prepare ourselves. और इन दिनों में हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। Dear ones, you will be asking God for this time at the latter end. और अंतिम दिनों में आप विश्वास मानिए प्यारे लोगों, इस समय को परमेश्वर से दोबारा मांगोगे। Have you ever read or heard about the book of hell? क्या भी आपने सुना है या पढ़ा है, एक किताब है जिसको कहते हैं बुक ऑफ हेल। The testimony is about the people, those who visit the hell. और वो गवाहियां आपने सुनी होंगी जो नरक में गए हैं। Anyone? You might have heard, and also you can go through it. You can find it on Google also. आप इस नरक की किताब के विषय में या जो गवाहियां हैं जो नरक में जाके वापस आए उनके विषय में गूगल में आप डालेंगे Some तो गवाही people मिल who जाएगी। went through the hell.
कुछ लोग जो नरक में जाके Oh, आए God हैं, showed them what is in the hell. कि परमेश्वर उनको ले जाके दिखाया नरक में क्या क्या The है। testimonies, each and every person they met in the hell, they were asking for only one chance. और गवाहियां उनके सुनने पर पता लगा कि हर एक व्यक्ति जिससे नरक में उन्होंने मुलाकात किया, वो सब लोग एक चांस के बारे में मांग रहे They're थे। only asking for one chance. Please, God, give us one day, one chance. हे परमेश्वर, एक दिन, एक मौका मुझे दे दे, एक हाँ। मौका मुझे दे दे। Whole through the life, they missed all their opportunities and they spoiled the time. और सारे जो जीवन भर उनके पास इतने सारे मौके थे, उन्होंने अपने जीवन को खराब कर दिया। Now, after going to the hellfire, they're asking for one chance. और अब नरक में जाने के बाद एक मौके को मांगते हैं। Dear ones, we should not be found in this state. प्यारे लोगों, हम इस दर्जे में नहीं पाए जाना That चाहिए। foolish virgins, they ask for the time. और जो मूर्ख लोग हैं वो समय को मांगते हैं। So, dear ones, these are the times when we need to very careful about our spiritual life. प्यारे लोगों, इन दिनों में अपने आत्मिक जीवन के विषय में बहुत ही हम सावधानी से रहना Let's चाहिए। all preserve what God has given us. आइए परमेश्वर ने जो हमें दिया उसको संभाले रहें। Let's all grow what God has given us. आइए परमेश्वर ने हमें जो दिया उसमें हम बढ़ते रहें। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ So, हो। what we can seek back, हम क्या दोबारा खोज सकते हैं? what we need to seek in these days, इन दिनों में हमें क्या ढूंढना we चाहिए? need to seek the assays. हमें गधियों को ढूंढना We चाहिए। need to get back that burden sharing experience with God. परमेश्वर के साथ उसके बोझ को बांटने का अनुभव पाना चाहिए। Secondly, we have to seek the brethren. दूसरा, हमें भाइयों को ढूंढना चाहिए। Thirdly, I told you we need to seek a man who is cunning in playing the harp. और तीसरा, हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो वीणा बजाने निपुण हो। Speaks about a man who worships God. ये एक व्यक्ति जो परमेश्वर की आराधना करता है उसको दर्शाता है। God desires that we should worship God in spirit and truth. परमेश्वर हमसे आग्रह करता है हम रूह और सच्चाई में उसकी आराधना But करें। as I told you, there is no spirit and also truth is failing. इसलिए कि कोई भी आत्मा नहीं है, इसलिए सच्चाई भी असफल हो रही If है। there is no spirit in us, the truth will fail. यदि हमारे अंदर कोई सच्चाई नहीं है तो सचमुच आत्मा जो असफल हो जाएगा। Even if you try to show yourself truthful before God, without spirit it's impossible. यदि आप अपने आप को परमेश्वर के सामने सच्चा होकर दिखाना चाहेंगे लेकिन आपके अंदर आत्मा नहीं है, वो बेकार है। So dear ones, these are the days when we need to worship more in His presence. इसलिए इन दिनों में परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में हमें परमेश्वर के दिन में और भी अधिक प्रार्थना If we करना are चाहिए। not rejoicing here in the presence of God on this earth, यदि हम हाँ, परमेश्वर के दिन में इन दिनों में मगन नहीं हो पा रहे, हाँ, पृथ्वी में रहते हो अगर आप प्रभु के सम्मुख में मगन नहीं हो पा रहे, how it's possible that you will rejoice there in eternity? तो ये कैसे हो सकता है कि आप अनंत काल में परमेश्वर के हजूर में रहते हुए खुशी मनाएंगे? Once a man of God said like this, एक बार परमेश्वर के व्यक्ति ने ऐसे बोला, if you are not thankful to God for your sufferings, how you will be thankful for the crown which God gives you? यदि आप परमेश्वर ने जो आपको कठिनाइयां परेशानियां दी हैं, परीक्षाएं दी हैं, उनके बारे में परमेश्वर को धन्यवाद नहीं If you are देते, not thankful for the sufferings that you go through, परमेश्वर ने जो आपको मुश्किलें दी हैं, आप उसे जाते हैं, you will उसके never be thankful for the crown that God will give you. तो परमेश्वर जो आपका मुकुट देगा उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं होंगे। You know, the thing which is hard earned, then only you'll get the value of that. जो भी बात आपने बहुत ही मुश्किल से, कठिनाई से पाया है, उसी का कीमत आप जानेंगे। If something which you have got free, how much value will do it? यदि कोई बात आपको, कोई चीज आपको फ्री में मिल गया है, उसका क्या मूल्य है? बिना मूल्य के मिला है तो। कोई बिना मूल्य के मिला है, उसका क्या कीमत है? Now everything God has given in our life is free. हाँ, परमेश्वर ने हमें दिया है, ये फ्री में दिया है। What cost you paid when you were anointed by the Spirit? आपने कौन सा मूल्य चुकाया है जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अभिषेक किए गए? How many of your spirit baptized? Please lift up your hands first. कितने लोग आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाए हैं? अपने हाथों को उठाइए। I really need to go through this. Means we need to conduct a special sessions for this anointing. और परमेश्वर की जो अभिषेक पाने के लिए अलग अलग सेशन भी चलाना पड़ेगा। जरूर पड़ेगा, एक क्लासेस लगाने पड़ेंगे। Okay, tell me, how many of you are anointed with the Holy Spirit, please? कितने लोग पवित्र आत्मा के द्वारा जो अभिषेक पाए हुए अपने हाथों को उठाइए। If you remember, यदि आपको याद है तो। this is not, this is the way. Okay, what cost you paid? आपने क्या Martin मूल्य brother. चुकाया? Nothing. कुछ नहीं। You paid nothing. आपने कुछ भी नहीं दिया। You paid time. आपने समय दिया। How much? कितना? Okay, Kumar, what you paid? Requested. No, what you paid for to receive this Holy Spirit? Nothing. Aksa, what you paid? Nothing. So it's free of cost? So how much we are valuing it then? Bolo. आप कितना इसको मूल्य देते हैं? How much we are valuing? हम इसको कितना मूल्य देते हैं? Now, mobile phones, you have all we have mobile phones still holding in our hands. आप सभी के हाथ में मोबाइल फोन है, आप मोबाइल फोन है आपके पास? हाँ, अभी भी पकड़े हुए हैं। अभी भी पकड़े हुए हैं।
How much it cost? ये कितना मूल्य का है? 25, 30 iPhones, more than 1 lakh. 25,000 30,000 जो आईफोन है 1 लाख How से you ऊपर। are keeping it? आप उसको कैसे संभाल के रखते हैं? Because you have paid the price. क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। You know if it breaks, यदि अब वो टूट जाएगा तो before first the screen will break, then next your heart will break. पहले आप उसका स्क्रीन फूटेगा, फिर आपका दिल भी टूट जाएगा। So because it's very expensive to क्योंकि- replace that screen, it's very expensive. क्योंकि स्क्रीन बदलना बहुत पैसे लगते हैं। Okay, what price you paid in order to get the word of God? आपने परमेश्वर का वचन को पाने के लिए आपने क्या मूल्य चुकाया? Some of us might say, 120 rupees, at least 120 rupees for one Bible we have paid. एक बाइबल के लिए आपने कम से कम 120 रुपए चुकाया होगा। है ना? But how much you are valuing it? लेकिन आप उसका कितना मूल्य देते हैं? So dear ones, we need to understand all these things. इस बातों को हमें समझना चाहिए। The things which we have got freely in our life, we don't value it. जो बातें हमें फ्री में मिला है उनका हम मूल्य नहीं देते। If there is a price that we need to pay for it, we will value it. हमें कोई मूल्य यदि चुकाना पड़ा है किसी चीज का तो उसका हम वैल्यू करते You हैं। being very careful for your children to send them to the tuitions for the school because you are paying lot of money, a hefty amount you are paying there. आप बच्चों को ट्यूशन भेजने में बहुत ही रहते हैं क्योंकि आपने उसके लिए पैसे दिए हैं। But how much you are bothered about was sending them to the meetings? लेकिन आप लोगों में से कितने चिंता करते हैं कि उनको फ्रीडम में मीटिंग में How भेजना many चाहिए? parents you are bothered about your youths to send them for the youth meetings? कितने माता पिता यूथ मीटिंग में भेजने के लिए अपने बच्चों को जो बहुत ज्यादा जोर देते हैं? If they have their exams, you will send to the shores of the earth. आप यदि उनका एग्जाम आ गया, परीक्षा आ गया तो उनको दुनिया के किनारे में भेज देंगे। पृथ्वी के कोने में भी भेजोगे. But what about the meetings which are conducted here only? लेकिन जो चर्च में मीटिंग चलाया जाता है उसका क्या? We are not bothered about that. उसके बारे में हमें चिंता नहीं है। It's free. Next time we'll see. हम अगली बार देख लेंगे। If you miss the exam, what will happen? यदि आप अपने परीक्षा को मिस कर दोगे तो क्या होगा? Your whole year will be ruined. आपका पूरा साल खराब हो जाएगा। But God, which gave you so many years, how many years you have ruined? लेकिन परमेश्वर ने इतने सारे साल दिए आपके जीवन में, कितने सालों को We आपने need खराब to कर दिया? understand all these things, people. हमें इन बातों को समझना चाहिए। We should preserve those experiences before meeting our God. और इन सारे अनुभवों को हमें अपने पास संभाल कर रखना चाहिए परमेश्वर से मुलाकात करने से पहले। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ Moving हो on to the moving on to the next point. दूसरे विषय में बढ़ने Last से week पहले I told you we need to search the scriptures. मैंने पहले बताया पिछले हफ्ते कि हमें पवित्र शास्त्र को ढूंढना John चाहिए। 5:39 says, Jesus says, search the scriptures. यूहन्ना 5:39 में यीशु कहता है पवित्र शास्त्र को खोजो। Now answer me, what you will find in the scriptures? आप जवाब दीजिए, आप धर्मशास्त्र में क्या पाएंगे? Anyone? Huh? We'll find Jesus in it. हम उसमें यीशु को पाएंगे। We find Jesus in it. हम उसमें यीशु को I पाएंगे। don't know with mindset we are reading the word of God, but to find Jesus we must go through these scriptures. लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आप किस मानसिकता से परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं। यदि आप यीशु को पाना चाहते हैं तो आपको धर्मशास्त्र पढ़ना होगा। We need to seek Jesus in the scriptures. हम परमेश्वर के वचन में यीशु को खोजना चाहिए। Each and every scripture speaks about Jesus. हर एक जो धर्मशास्त्र में वचन है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता Even in है। the Old Testament it's spoken about Jesus. पुराने नियम में भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला गया So है। dear ones, when we go through the Bible, when we read the Bible, we must keep God in our mind. We must keep Jesus before us and we must put efforts to seek Jesus. जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर को हमें अपने मन में रखना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। You know what will happen if we'll go through the word of God? क्या होगा जब हम परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे? When we read Romans 15 chapter verse 4. जब हम रोमियो 15 उसका चौथा वचन पढ़ते हैं। Please read Romans 15:4. आइए रोमियो के पत्री 15 अध्याय चौथा वचन पढ़ेंगे। जितनी बातें पहले से लिखी गई वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. That we might have hope. ताकि हमें आशा हो। Why we need to read the word of God? क्यों हम परमेश्वर के वचन पढ़ना In चाहिए? order to increase, in order to get increased in that hope. ताकि हम उस आशा में और भी अधिक बढ़ते जाएं। And tell me, what is the hope? आशा क्या है बताइए? Anyone? What is the hope? आशा क्या है? Huh? What is the hope? हमारी आशा क्या है? बोले? Huh? Tell me from the brother's side. Brother's They're side very से बताइए। silent. ब्रदर्स बहुत चुप है। Out of the presence of God, they're violent, but in the presence of God, they are silent. परमेश्वर के हजूरी के बाहर तो बहुत ज्यादा, लेकिन परमेश्वर के हजूरी में बिल्कुल हिंसक चुप है, हिंसक है. हिंसक है। हाँ. Tell me, brothers, what is the hope?
Huh? Anyone? What is the hope? आशा Sunday क्या school है? teachers, संडे tell me. स्कूल अध्यापक लोग बताइए आशा क्या है? What is the hope? आशा क्या है? Coming of the Lord is a hope. परमेश्वर का आगमन हमारी आशा है This much also we don't know. और इतना भी हमें नहीं मालूम. That's what I told you. We need to conduct a sessions here. इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर सेशन चलाने पड़ेंगे. For every for group people, we need to conduct a sessions. एक एक ग्रुप के लिए एक एक सेशन हमें चलाना For पड़ेगा. the senior believers, another session. For the little junior, than that, another session. For the youths, for the children, we need to conduct these sessions. सबसे सीनियर के लिए अलग सेशन, उससे थोड़ा नीचे उनके लिए एक अलग सेशन, जवानों के लिए Coming अलग of the Lord सेशन. is a hope. परमेश्वर का आगमन हमारी And आशा how है. we can grow in that hope? हम उस आशा में कैसे बढ़ By सकते हैं? reading the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं. And what the word of God teaches us? परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? How to live this spiritual life. परमेश्वर के जो आत्मिक जीवन को कैसे जीना We चाहिए. being physical cannot know how to live this spiritual life. यदि हम शारीरिक हैं तो हम आत्मिक जीवन कैसे बिताना Here नहीं once जान in पाएंगे. order to live this spiritual life, you need to become spiritual in these days. प्यारे लोगों, यदि आप आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो इन दिनों में आपको आत्मिक बनना होगा. If you really want to become spiritual in these days, यदि आप सचमुच इन दिनों में आत्मिक you बनना must चाहते go हैं, through the word of God and learn how to lead your life. परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए आपको सीखना चाहिए कि आप अपने जीवन को आत्मिक रूप से कैसे जीना है. Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की Last तारीफ week I हो. told you about the example of Samuel. पिछले हफ्ते शमूएल के उदाहरण दिया, You know, he was taught by Eli. क्योंकि वो इलाई के द्वारा From सिखाया the very गया. young age, he was taught by Eli. बहुत छोटे उम्र से इलाई के द्वारा सिखाया And गया. he is very much recognizing the voice of Eli. वो इलाई की आवाज को बहुत ही ज्यादा समझता था. Even if he is in the sleep, he recognizes his voice. क्यों वो उसके नगर में होने पर भी उसकी आवाज को वो नींद में होने पर भी उसकी आवाज को आदी था. Now, so he was so obsessed with the voice of Eli. वो इलाई की आवाज से बहुत ही आदी था. Now one day what happened? क्या हुआ? Out of syllabus, out of perception, what happened? और सिलेबस के बाहर क्या हुआ? God called him, परमेश्वर ने उसे बुलाया. Samuel. सामुएल. Now he, because he is very obsessed with the voice of Eli, क्योंकि वो एली की आवाज से बहुत ज्यादा आदी था, he thought Eli is calling him. उसने सोचा एली मुझे बुला रहा है. Once he went there. वो उसके पास गया. Second time he went there. दूसरी बार भी उसके पास गया. Thrice he went there. तीसरी बार भी उसके पास Then गया. Eli understood. तब एली ने समझ लिया God is speaking with him. परमेश्वर उससे बात कर रहा And है. you know that also Eli has to teach him that God is speaking with you. और वो बात भी एली को उसको सिखा के देना पड़ा कि परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है. He couldn't himself recognize the voice of God. वो अपने आप खुद से समझ नहीं पाए कि परमेश्वर की आवाज That है. thing has to be taught by Eli to him. वो बात भी उसको एली ने सिखाया. It was not by him. The answer gave, the reply he gave him. और वो उसके द्वारा नहीं है, वो एली को द्वारा उसको उत्तर मिला. You know, no, the reply which he gave to God, oh Lord, speak for thy heareth servant, heareth, that was taught by Eli. और हे परमेश्वर तेरा दास सुनता है, ये बात भी उसको जवाब देना परमेश्वर को एली ने ही सिखाया. Next time if you'll hear calling, जब अगली बार Eli said, इलाई ने बोला, अगली बार तब तो सुनोगे परमेश्वर बुलाएगा. you must say, oh Lord, speak for thy servant heareth. हे परमेश्वर बोल, क्योंकि तेरा दास सुनता है. Now he copy pasted those same words with when God called him next. उसने वही सेम बात को परमेश्वर से जब बात किया वही बात बोला. You know, he was so obsessed with the voice of Eli that he couldn't recognize the voice of God. क्योंकि वो एली की आवाज से इतना आदी था, वो परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पाया. Same thing is with us also. वही बात हमारे साथ भी We होता are है. not able to recognize the voice of हम God. परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं We पाते are not हैं. able to understand that God is speaking with us. हम नहीं समझ पाते कि क्या परमेश्वर हमसे बात And कर रहा we है. think someone else is speaking. और हम सोचते हैं कोई और बात कर And रहा the है. Spirit of God says, fill in the Spirit. परमेश्वर का आत्मा कहता है आत्मा में And the भरो. Spirit of God when says, worship God. परमेश्वर का आत्मा कहता है परमेश्वर की आराधना करो. We think it's a strange voice which is speaking with us. और हम सोचते हैं कि ये कोई अन्य आवाज है जो मुझसे बात करता है. And what we do? हम क्या करते हैं? We decline it. हम उसको तुच्छ जानते हैं. We decline हम that. उसको रद्द कर देते हैं. Because it's coming a strange voice. We are not able to recognize the voice of God, and that's why we are not obeying it. क्योंकि वो एक अलग आवाज है और हम परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचानते, इसलिए हम उसको रद्द कर देते हैं. That's why last week also I told you, because
people, they were seeing Moses and they couldn't understand the God is behind Moses. That's why they used to stone him, they used to murmur against him, they used to complain against him. इसलिए मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया कि मूसा जब लोगों से बात करता था उनको बोलता था, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते थे, क्योंकि मूसा के पीछे जो महान और बड़ा परमेश्वर है उसको वो लोग नहीं देख पाते थे, इसलिए मूसा के विरोध में वो कुड़कुड़ाते थे, उसको पत्थर मारते And थे। today some of the believers, some of the people, why they are hating this doctrine, why they are against the doctrine, why they are raising questions and queries against this doctrine. क्यों कुछ लोग इस उपदेश के विरोध में हैं, बहुत सारे प्रश्नों को उठाते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? You know what is the reason? उसका कारण क्या है? They think it's given by men. क्योंकि वो सोचते हैं ये एक मनुष्य द्वारा बोला गया These है, doctrines they are given by men. क्योंकि वो सोचते हैं ये जो उपदेश एक These मनुष्य द्वारा बोला rules गया and है, regulations they are given by men. ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं They ये are मनुष्य ने seeing बनाए men हैं, but they are not able to see the God. क्योंकि वो उस परमेश्वर को नहीं देख पा रहे हैं। Today we have so many queries and doubts against this doctrine. हमारे अंदर भी बहुत सारे प्रश्न और शंका हैं इस We उपदेश के लिए। raise up so many questions against the word of God. हम परमेश्वर के वचन के विरोध में कई सारे बातों को कहते But हैं, we must understand one thing. लेकिन एक बात को हमें समझना होगा, It is our heart who's receiving the word of God. ये हमारा हृदय है जो परमेश्वर के वचन को How ग्रहण is करता our है। heart? हमारा हृदय कैसा है? I'll tell you one example. एक उदाहरण देता हूँ। For example, उदाहरण के लिए in Matthew 13 chapter we read about a seed sower. मत्ती 20वां अध्याय में बीज बोने वाले को पढ़ते हैं। Now listen carefully. Me, don't go through your Bibles. Listen me. ध्यान से सुनिए, बाइबल में ना देखिए, You can go through that after that. Okay. बाद में आप पढ़ So सकते हैं। Matthew 13 records the parable of seed sower. और मत्ती 13वां अध्याय में बीज बोने वाले के बारे में देखते हैं। Now the seed is only one. बीज एक ही है, But the ground which is receiving that seed are four. लेकिन जो भूमि उस बीज को ग्रहण करता है वो 4 प्रकार की भूमि There है। is no difference in that seed. बीज तो एक ही है, But the ground which is receiving that seed differs. लेकिन जो भूमि जिसमें वो बीज बोया गया वो अलग अलग है। Stony, एक पथरीला, bush, एक झाड़ियों वाला, wayside, और वो सड़क के किनारे, good ground. और अच्छा भूमि। So there is no difference in that seed. जो बीज है उसमें कोई अंतर नहीं है। Seed is same for all these four grounds. सारे भूमियों के लिए ये बीज एक ही But है, the difference lies in that ground which receives it. लेकिन उस बीज में क्या, उस सड़क में भूमि में क्या क्या है वो अंतर दिखाता है। भूमि जो उसको ग्रहण करती है उसमें अंतर है. भूमि जो ग्रहण करती है उसमें अंतर है, Now the word of God is same. क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ही I है। am preaching from the same word. मैं एक ही इसी उपदेश में, Pastor will come, he will preach from the same word. पास्टर जी भी आएंगे इसी वचन से A प्रचार small करेंगे। brother will come, he will preach from the same word. छोटा ब्रदर आएगा वो भी इसी बाइबल से The पढ़ेगा। former brother, he preached from the same thing. पहले वाले ब्रदर भी इसी वचन से आपके प्रचार किया। How is your heart which is receiving the word of God? आपका हृदय कैसा है जो परमेश्वर के वचन को We ग्रहण करता raise है? question that preaching is not good. What brother is telling, what that pastor is telling, it's not correct from the word of God. This thing need to be debated. We are thinking like that. We are doing that like that. But how's your heart receiving the word of God? परमेश्वर का वचन ये जो सिखा रहे हैं सही नहीं है, हम प्रश्न पूछते हैं वो ठीक नहीं है, हम उसके बारे में विरोध करते हैं, लेकिन हमारा हृदय जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है वो कैसा Word is है? same. वचन एक ही है, Manna was same. मन्ना एक ही था, Manna was same for everyone. मन्ना सभी के लिए एक ही था, But people, those who received were different. लेकिन लोगों ने जो ग्रहण किया वो अलग अलग लोग थे। Dear ones, the same Peter said, you have the words of eternal life. The same words were a stumbling block for the Pharisees and Sadducees. और संत पौलुस ने कहा कि संत पतरस ने कहा कि जो वचन आपको मिला है वो एक ही है। जो पतरस ने कहा कि तेरे पास तो अनंत जीवन की बातें हैं, लेकिन वो ही अनंत जीवन की बातें फरीसियों के लिए, सदूकियों के लिए ठोकर का कारण था. Because they had a different heart of receiving it. क्योंकि उनके पास एक अलग हृदय था जो ग्रहण कर Dear रहा ones, था। how's your heart when you're receiving the word of God? प्यारे लोगों, जब परमेश्वर का वचन आप ग्रहण करते हैं आपका हृदय कैसा है? There were 4 groups of people which followed Jesus. 4 लोग झुंड के लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए। This thing I've told you in the first preaching also. ये मैंने आपको पहले प्रचार में बताया। One group of people only for eating they used to come. पहले एक ग्रुप के लोग केवल खाने के लिए आते थे, And they used to only come for the free food. और वो जो फ्री में खाना मिलता है उसको खाने के लिए आते थे। This loaves, fish, they're getting it very much, so they are coming. और उनको मछली रोटी खाने को मिलेगा इसलिए फ्री में मिलेगा करके आते थे। Another group of people, they used to come only to hear the word of God. दूसरे झुंड के लोग केवल परमेश्वर के वचन को सुनने आते थे। Another group of people, they used to come for only deliverance and healing. तीसरे झुंड के लोग केवल छुटकारे के लिए, बीमारी चंगाई But के लिए there आते was थे। another group of people, those who used to follow Jesus was जो आखिरी झुंड के लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते थे वो थे to
catch what wrong comes out of his mind. जो प्रभु यीशु मसीह के मन से जो गलत बातें निकलती हैं उनको पकड़ने के लिए आते Catch थे। what words comes wrong out of his mouth. यीशु मसीह के मुंह से जो भी गलत बातें निकलेंगी And उसको पकड़ने के to लिए, hold him in that guilty, they used to follow him. और उसको दोषी ठहराने के लिए उसके पीछे पीछे हो लेते Now थे। some people they say they get stumble from the word of God. और कुछ लोग परमेश्वर के वचन से ठोकर खाते हैं। क्या ब्रदर प्रचार कर रहे हैं? What is preaching? क्या प्रचार कर रहे हैं? No, because you are coming with that same mindset. That's why that's hurting you. क्योंकि उसी मानसिकता से आप आते हैं, इसलिए आप ठोकर खाते हैं। Now when people they were gathered there, जब लोग वहां इकट्ठा हुए, when Peter was preaching, जब पतरस प्रचार कर रहा था people were gathered there. और जो लोग वहां पे इकट्ठा हुए, Peter straightforwardly he accused them, you are the ones who crucified Jesus. पतरस ने उनको साफ साफ बोला कि तुम ही लोग हो जिन्होंने यीशु को क्रूस पर There were चढ़ाया। so many people, 3,000 people they were gathered there. 3000 के लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा थी। You are the ones who crucified Jesus. तुम ही लोग हो जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। Now, this thing convicted them. The word of God says this thing pricked their hearts. और परमेश्वर का वचन कहता है ये बात को, वचन को उनके दिल को छेद दिया। And what happened? तब क्या हुआ? Goodness came out. उनके अंदर अच्छाइयां आई। They said, we need to saved. हम उद्धार पाना चाहते हम हैं. उद्धार पाना We चाहते need to be हैं। saved. हम उद्धार पाना चाहते हैं। When their hearts got pricked by the word of God, जब परमेश्वर के वचन के द्वारा उनका हृदय छेदा गया, bitterness never came out. उनके अंदर से कड़वाहट बाहर नहीं आई। That goodness came out of their life केवल अच्छाइयां उनके जीवन से बाहर आई and they were saved. और वो बचाए गए। When the word of God is preached to you, जब परमेश्वर का वचन आपके is प्रचार किया it जाता है, making you bitter or more sweet? क्या वो आपको और भी कड़वा या आपको मीठा बना रहा If है? that heart, if your hearts are pricked by the word of God, whatever is in your heart will come out. यदि परमेश्वर के वचन से आपका हृदय छेदा जाता है तो आपके हृदय में जो भी है वो बाहर आएगा। Whatever is in there, it will come out. जो भी उसके अंदर है वो बाहर If आएगा। your heart is full of bitter, the bitterness will come out. यदि आपका हृदय कड़वाहट से भरा है तो कड़वाहटपन बाहर If your आएगा। heart is full of sweetness, the sweetness will come out. यदि आपका हृदय मीठापन से भरा है तो मिठास बाहर आएगा। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ You हो know that गई। soldier when he put that spear in the side of Jesus, जो सिपाही जिसने यीशु के पंजर में उस भाले को भेदा, a little blood and the water came out. थोड़ा लहू और पानी बाहर आया। Because it all blood was oozing there and there was no he was not left with any blood. और क्योंकि वहां पे जो खून था वो बाहर आ रहा था, और उसके शरीर में कुछ खून और बचा नहीं. क्योंकि खून बचा ही नहीं था And शरीर it में, was all water there. केवल पानी बचा So था। whatever is there, it will come out. जो भी उसके अंदर था वो भी बाहर When आएगा। the spear of the word of God, जब परमेश्वर का वचन आपको छेदेगा, भाला, when the spear of the word of God will prick जब you, परमेश्वर का भाला वचन जो भाला है dear वो जब ones, छेदेगा, whatever will be in your life, that will come out. जो भी आपके जीवन में होगा वो चीज बाहर आएगा, That will come out. वो बाहर आएगा। And sweetness should come out of our life. हमारे जीवन से मिठास बाहर आना The चाहिए। word of God says, out of the strong one, sweetness came. परमेश्वर Who का knows that वचन, verse? परमेश्वर का वचन कहता है बलवान के अंदर से जो मिठास बाहर आया। Anyone? कोई वचन बचा सकता है? Who knows that? If you'll answer me, I'll give you prize after the meeting. यदि आप आंसर दोगे तो मीटिंग के पश्चात आपको इनाम मिलेगा। Breaking the stone. Samson. Who said? Okay, Martin brother. Please meet me after the meeting. Samson. Samson, when he killed that lion. सिमसोन जब उसने उस शेर को मारा, Read that verse. आइए उस वचन को पढ़ेंगे। 14:14. Judges 14:14. न्यायों 14 उसका 14 वचन। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। Correct. And he said unto them, out of the eater came forth meat, and out of the strong came forth sweetness. Out of the strong came forth the sweetness. और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। Dear ones, if you are strong in your spiritual life, the only sweetness will be seen in you. प्यारे लोगों, यदि आप आत्मिक जीवन में बहुत ही बलवान है तो आपके अंदर केवल मिठास पाया If जाएगा। you are weak in your spiritual life, you will be full of the bitterness against people, against everyone. यदि आप आत्मिक जीवन में बहुत ही कमजोर हैं तो आप लोगों के विरोध में, हर एक के विरोध में कड़वाहट बाहर आएगा। Now look at your life today. आज अपने जीवन को जांच के देखिए। Examine your life today. अपने जीवन को जांच के Is देखिए। there any kind of bitterness in you? क्या मेरे अंदर कोई कड़वाहट है? Is there any kind of root of bitterness uprooting in you? क्या मेरे अंदर कोई कड़वाहट जन्म ले रही है? If there is bitterness against anyone in your life, यदि आपके जीवन में किसी के विरोध में कड़वाहट है this तो world clearly says you are weak.
ये वचन साफ साफ कहता है आप कमजोर हैं, Because of out of the strong one, the sweetness came. क्योंकि बलवान में से मीठी वस्तु निकली। If the word of God is pricking you, that sweetness must come out of your life. यदि परमेश्वर का वचन आपको छेद रहा है तो आपके जीवन से मिठास बाहर आना If the word of चाहिए। God is pricking you, that repentance must come out of your life. यदि परमेश्वर का वचन आपको छेद रहा है तो आपके अंदर से वो माफ करने का स्वभाव आना चाहिए, मन पर पक्षताप आना चाहिए। When the word of God is pricking you, that rectification should come out of your life. और जब परमेश्वर का वचन आपको चुभता है तो वो सुधार बाहर आना चाहिए। It should not be. Rather, it should not be when the word of God pricks you. You should it should be a stumbling block, and you leave the presence of God and go. ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन आपको चुभता है वो आपके लिए ठोकर का कारण बन जाता है और परमेश्वर का हज़ूरी छोड़ के चले जाते Don't हैं। say the word of God is debatable. The word of God is not debatable. It's very much clear. परमेश्वर का वचन कोई वाद विवाद करने का बात नहीं है, It's very much clear. वो बिल्कुल साफ है। It's your understanding that you are not getting the word of God. और ये केवल आप हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं सही से नहीं समझ ये पा रहे। आपकी समझ है, आप समझ नहीं पा रहे। आपकी समझ नहीं पा रहे। ये आपकी बुद्धि, आप समझ नहीं पा रहे। ये आपकी बुद्धि आप समझ नहीं पा Because रहे, you have that worldly mind, you are not getting the spiritual things of God. क्योंकि आपके पास सांसारिक मन है इसलिए परमेश्वर की बातों को That's समझ what नहीं पा रहे। Jesus said. Being a worldly, you will not get the heavenly things. यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये आप सांसारिक होते हुए परमेश्वर के स्वर्गीय बातों को नहीं पा So if you सकते। don't understand the word of God, यदि हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते and you have a worldly mind, तो आपके पास सांसारिक मन है। here once the word of God is very much needed in these days. प्यारे लोगों, इन दिनों में परमेश्वर के वचन की हमें बहुत ही आवश्यकता We है। need to search the scriptures in these days. इन दिनों में पवित्र शास्त्र को हमें ढूंढना Praise चाहिए। be to God's name. परमेश्वर नाम की तारीफ होवे। There is so much of to tell, but I'll move forward. बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। I'll quickly go through the blessings that we receive through the word of God. मैं जल्दी में जाऊंगा कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हमें क्या आशीष मिलती हैं। First, according to Romans 10:17, our faith grows. पहला रोमियो 10 वचन के अनुसार हमारा विश्वास बढ़ता है। According to Romans 10:17, our faith grows when we read the word of God. रोमियो की पत्री 10 वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है। Read. पढ़े। अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह से वचन से होता है। Correct. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hearing by the word of God. और सुनना परमेश्वर के वचन When we से। hear the word of God, that this faith must grow in us. जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर ये विश्वास बढ़ना Jesus चाहिए। says, "You believe God, believe in me also." प्रभु यीशु कहते हैं कि आप परमेश्वर विश्वास करते हो मुझ पर विश्वास करो। So we have to believe Jesus. हमें यीशु पर विश्वास We करना have to चाहिए। believe the word of God. परमेश्वर का वचन विश्वास करना You know, चाहिए, there is something which lies in belief. क्योंकि विश्वास करने में कुछ चीज है। There is something lies in this word belief. और जो विश्वास जो शब्द है उसके अंदर कुछ छुपा हुआ है। And some of us, they don't have this belief, and that word is in their life. क्योंकि कुछ लोगों को वो विश्वास नहीं है और वो वचन उनके अंदर है। Please, I need a whiteboard. Next time I'll put one whiteboard. I'll teach you how to do that. So the word belief. मैं अगली बार यहाँ बाइट बोर्ड लगाऊंगा, सिखाऊंगा कैसे होता है ये विश्वास जो शब्द है। Write down this word in your notebooks. Belief. अपने नोटबुक में ये जो विश्वास है इस शब्द को लिख लीजिए। BELIEF. BELIEF। So this is belief. ये बिलीफ है। Now we believe. हम विश्वास करते We हैं। being believers believe. हम जो विश्वासी हम How many of you believe? Shout an hallelujah. जितने लोग विश्वास करते हैं हालेलुया पुकारेंगे। Now, the word itself says some of you are lying. और शब्द खुद कहता है कि कुछ लोग जो झूठ बोल रहे Because हैं, there is a lie in that word. क्योंकि उस जो विश्वास है उसी में एक झूठ छुपा हुआ है। In that word there is lie. उसी शब्द में झूठ छुपा हुआ है। Did you find it? क्या आपने खोजा? So is it faith or lie? क्या विश्वास है या झूठ है? No, there is faith in you or lie. आपके अंदर विश्वास है या झूठ है? You being believers or lying? क्या आप विश्वासी होते हुए आप झूठ बोलते हैं? नहीं, आप विश्वास करते हैं या झूठ है? आपका विश्वास सच्चा है या झूठा है? This is we need to understand. यही बात हमें समझना होगा। Even if you take in Hindi also, I told in the Bible study, विश्वास में विष का वास है.
जैसे मैंने हिंदी में बाइबल स्टडी में बताया कि विश्वास में विश्व का वास है, It's in Hindi also. और हिंदी में भी है, Even if it's in English, it's in Hindi also. इंग्लिश में भी है तो हिंदी में भी है। So your faith should not become a lie. तो आपका विश्वास झूठ नहीं होना You should चाहिए। not lie in your spiritual, in your faith life. अपने विश्वास जीवन में आप झूठ नहीं बोलना चाहिए। I'm a believer. I believe God. I believe God. But when it comes to the testing times, you don't believe God. You doubt God. मैं परमेश्वर विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर विश्वास करता हूँ, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो आप विश्वास नहीं करते Oh हैं। Lord, why me? हे परमेश्वर क्यों मैं? Oh Lord, why these sufferings? क्यों परमेश्वर मेरे को ये Oh समस्या Lord, आई? why I'm not getting deliverance? हे परमेश्वर का असल छुटकारा क्यों नहीं मिल This रहा? is lie you are speaking to God. ये झूठ है जो परमेश्वर से The बोलते हैं। Jesus who said, "It is finished," you are lying to the same God. और ये प्रभु यीशु में से कहते हैं, यही जो झूठ है वो परमेश्वर से बोलते वो हैं। प्रभु जो कहता है सब कुछ पूरा हुआ, उसी प्रभु को आप झूठ बोलते कि क्यों प्रभु? We are not believing. क्योंकि हम विश्वास नहीं करते We हैं। are not believing. We are doubting. We are raising questions. We have queries against God, against the power of God, and that's why we doubt. हम शंका करते हैं, परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं और परमेश्वर से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, हमारे अंदर विश्वास नहीं है। So that belief becoming a lie now. और इसकी वजह से विश्वास हमारे जीवन में एक झूठ बन And जाता that's है। what Jesus said. ये यीशु ने नहीं कहा, Even that's what Jesus said. ये यीशु ने कहा है, That even in the last days, even the elected ones shall be deceived. क्योंकि आखिरी दिनों में जो चुने हुए हैं वो धोखा खाएंगे। This is how we are being deceived by devil. और इसी प्रकार से शैतान के द्वारा हम धोखा खाते हैं। Your God will not listen you. Your God will not listen you. आपका परमेश्वर आपको सुनेगा He नहीं, will not hear your prayer. वो आपकी प्रार्थना को नहीं This सुनेगा। sickness will remain in you. और ये बीमारी है आपके अंदर रहेगी। You will not get deliverance from this sickness. आपको इस बीमारी से छुटकारा नहीं No मिलेगा। matter how you pray, कोई भी कैसे भी आप प्रार्थना no करो, matter how much you get prayed, कैसे भी आप प्रार्थना करो तो no भी matter whatever you are applying on this thing, आप कोई भी चीज उसके ऊपर लगाओ, you will not get healing. आपको बीमारी से चंगाई This नहीं is मिलेगा। what devil is whispering in your ears. और यही बात लगातार शैतान आपके कान And में you बोल रहा are है। believing that you are not believing God. और ये बात को आप विश्वास करते हो, यीशु पर विश्वास नहीं करते। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। That's why lies are very much acceptable in these days. इसलिए झूठ इन दिनों में बहुत ही ग्रहण योग्य है। If you'll tell a story, if you'll tell a lie, everything will be believed. If you'll tell a truth, no, it will not be believed. यदि मैं झूठी कहानी बोलूंगा सब लोग विश्वास करेंगे, यदि मैं सच बोलूंगा कोई विश्वास नहीं करेगा। No one, there was a magic man. एक बार एक जादू दिखाने वाला So, था। like me, I'm standing before you in a big auditorium. We was doing a magic trick. जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ वैसे ही वो भी एक बहुत बड़े हॉल में खड़ा होकर एक मैजिक दिखा रहा था। What he did, उसने क्या किया, he put his hand in his shirt, उसने अपने शर्ट में अपने हाथ को डाला and he was making a grunting sound of a pig. और वो एक जो सुअर है उसकी तरह आवाज निकाल रहा था। He was showing his hand like this, kind of a pig in his. If there is a pig in his shirt. वो दिखा रहा था कि मेरे शर्ट में एक जो सुअर का बच्चा है करके अपने हाथ को इस आकार में बना के दिखा रहा था। So there was no, in reality there was no pig inside, but he was making a sound as if the pig is there. लेकिन सच में कोई सुअर नहीं था, वो वैसे ही अपने हाथ को इस प्रकार आकार में बना रहा था, अपने मुंह से आवाज निकाल रहा था। And people, they were enjoying. और लोग उसको बहुत ही मगन हो रहे And थे they were clapping it. और वो ताली बजा रहे थे। And you know what happened? क्या हुआ, There was a young man stood in the crowd. उस भीड़ में एक जवान खड़ा हुआ। Even I can do that. मैं भी ये कर सकता हूँ। So what he did? उसने क्या किया, That magician, he called him on the जादूगर stage. ने उसको अपने स्टेज पर बुला लिया। He said, "Stage is yours. You do it." ये स्टेज तुम्हारा है, तुम करो। Now what he did? उसने क्या He किया, put his hand in his shirt. अपने शर्ट में उसने अपना He हाथ डाला started making that pig sound. और वही सुअर का आज वो निकालने लगा। And people, they were looking at with a very curiosity. और वो बहुत ही ज्यादा उत्तेजना से उसको देख रहे थे। And they were not enjoying it. वो उसको बहुत ही मतलब खुशी Nobody नहीं हो was रही थी। clapping. कोई भी ताली नहीं बजा Nobody रहा था, shouted. कोई चिल्ला नहीं रहा था। Even they were getting irritated of that man. और वो उस आदमी से बहुत ही परेशान हो गए थे। He was doing the same exactly that magician was doing. जादूगर जो कर रहा था वैसे ही ये भी आदमी भी कर रहा No, था। at last what he did, you know? आखिर में उसने क्या किया, He took his hand out. उसने अपने हाथ को बाहर There was निकाला। an actual pig in his hand. उसके हाथ में एक सचमुच एक सुअर का Small बच्चा pig था was in his hand. और एक छोटा सुअर का बच्चा था। Then also nobody enjoyed. और तब भी किसी ने खुशी Hey, नहीं you मनाया। get away from that. Let that magician do. He's doing very good. सब लोग बोल रहे थे कि तुम नीचे उतर जाओ, वो जादूगर अच्छा कर रहा था, उसको करने दो। You know what he said in the microphone? उसने माइक्रोफोन में क्या बोला,
just because he's a magician and he lies to you, that lie is becoming a truth for you. Just because I'm not a magician and the truth I'm showing to you is becoming a lie for you. केवल इसलिए कि वो जादूगर है, वो जादू दिखा, वो झूठ बोल रहा है, वो आपके लिए सच बन रहा है। लेकिन मैं आपको सच दिखा रहा हूं, लेकिन वो आपके लिए सच जो है आप भूल, क्योंकि वो जादूगर है इसलिए वो झूठ दिखा रहे, तो आपको मजा आ रहा है और उस झूठ आपको सच लग रहा है। क्योंकि मैं जादूगर नहीं हूं और जो सच मैं आपको दिखा रहा हूं वो भी आपको झूठ दिख रहा है। आज यही है, इफ समवन इज शोइंग अस लाई स्टोरी, वी बिलीव वेरी मच। यदि हम कोई आजकल झूठ बोलता है, स्टोरी बोलता है, तो हम बहुत ही अच्छा उसको पसंद करते हैं। इफ आई विल टेल यू द स्टोरी इन द वर्ड ऑफ गॉड, यू विल एंजॉय इट वेरी मच। यदि परमेश्वर के वचन से मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा तो आप बहुत ही उसको अच्छे से सुनेंगे। देयर वाज अ पास्टर, ही वाज वेरी कनिंग। एक पास्टर जी थे, बहुत ही चालाक थे। पीपल दे नेवर यूज्ड टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। कोई भी जो लोग हैं परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते थे। सो वन फाइन संडे ही स्टूड। एक अच्छे संडे में वो खड़ा हुआ। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी। मैं अब आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इन दिस वर्ड ऑफ गॉड देयर इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू। एक परमेश्वर के वचन में बहुत ही अच्छी कहानी है, उसको मैं सुनाने जा रहा हूँ। Every believer they sat very attentively to listen what that story is. सारे लोग बहुत ही होशियारी से वहां पर बैठ के सुनने के लिए। And that pastor created that much hype that I'll tell you the story and I'll ask you some questions. If you'll answer me, I'll gift you. पास्टर जी ने बोला कि मैं एक कहानी बताऊंगा, उसके बाद प्रश्न पूछूंगा, यदि आप उसके प्रश्न का उत्तर देंगे तो मैं आपको एक इनाम भी दूंगा। Now, believers they sat very attentively, interestingly to hear that story. और सारे जो विश्वासी लोग थे बहुत ही खुशी से, उत्तेजना से उस स्टोरी को सुनने के लिए That बैठे। pastor that day preached for 1 hour. और वो पास्टर जी ने उस दिन 1 घंटे प्रचार किया। No story. वही जो कहानी था, No story. कोई कहानी नहीं था। He started his saying that I will tell you a story, but he preached the word of God. And that day, everyone listened the word of God because of that story. उन्होंने शुरू तो इसलिए इस तरीके से किया था कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उन्होंने पूरा परमेश्वर का वचन सुनाया। और क्योंकि लोगों ने सोचा कि ये पास्टर जी कहानी सुनाएंगे, इसलिए बहुत ही उत्तेजना से वो कहानी को सुन रहे थे। So after winding the word of God, परमेश्वर के वचन को समाप्त करने के बाद pastor said, पास्टर जी ने कहा, now what is lacking? अब क्या कमी है? Story. Every believer said, story. सब लोग चिल्लाने लगे, कहानी कहानी कहानी। Their mind was set on that story. उनका मन उस कहानी के ऊपर लगा हुआ था। If I'll tell you story, you'll be very interested. If I'll tell you the word of God, अरे क्या है, बहुत सुना है हमने। यदि मैं कहानी सुनाऊंगा तो आप बहुत ही खुशी से सुनेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा आप सोचेंगे यार क्या सुना रहा This है। is the state of our life now. यही हमारे जीवन की अवस्था है। The word of God, even the word of God says, fables and the fairy tales will become more famous in the last days. परमेश्वर का वचन कहता है जो कहानियां हैं वो आखिरी दिनों में बहुत ही खास बन जाएंगी। Where is that word? वो वचन कहाँ है? In the last days, people they'll hear the fables and stories. They'll not listen the word of God. आखिरी दिनों में लोग परमेश्वर का वचन को नहीं सुनेंगे, They will listen the fairy tales. वो कहानियों को सुनेंगे। Anyone? कोई बता सकता है? So this is the state of our spiritual life. और ये हमारे आत्मिक जीवन की अवस्था है। We are not listening the word of God attentively, but something which makes us joy. If that thing is told, we enjoy that thing. हम ध्यान से परमेश्वर के वचन को तो नहीं सुनते हैं, लेकिन यदि कोई खुशी या कहानी की बात है तो उसे बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। In the last days, people they'll be Tell me loudly if you're telling. Okay. 2 Timothy 4th chapter verse 3 and 4. दूसरा तिमोथी 4था अध्याय उसका 3रा और 4था वचन सब पढ़ें। लोग अपनी बाइबल खोलिए, सब लोग बाइबल खोलिए। इतना घमंड भी सही नहीं है। Open your Bibles, everyone. Take out that verse. सभी लोग अपना बाइबल खोलिए और उस वचन को निकालिए। 2 Timothy 4th chapter verse 3 and 4. दूसरा तिमोथी 4था अध्याय उसका 3रा और 4था वचन पढ़ें। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। Read in English also.
For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Turn unto the fables, और वो stories. कथा कहानियों की ओर अपने कान को लगाएंगे। You know what they'll do when that sound doctrine will be preached to them? और जो जब उनको खरा उपदेश सुनाया जो सच्चा उपदेश उनको सुनाया जाएगा, खरा उपदेश. खरा उपदेश सुनाया जाएगा तो क्या होगा? When that sound doctrine will be preached to them, what they will do? खरा उपदेश जब उनको सुनाया जाएगा वो क्या करेंगे? What they will do? वो क्या करेंगे? Anyone? कोई बता सकता है? Tell me with the action what they'll do. अपने एक्शन दिखाइए और बताइए क्या करेंगे? They'll be itching their ears. वो अपने कान को इस तरह खुजली करेंगे। क्या यही है बस, और कुछ और सुनाओ, कुछ इंटरेस्टिंग सुनाओ हमें. That's what we want to hear. और इन दिनों में हम यही सुनना चाहते We हैं। don't want to hear the word of God. हम परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं We चाहते। need stories in these days. हमें कहानियां चाहिए इन We दिनों में। need something very interesting in these days. इन दिनों में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग सुनना चाहते You know, हैं। this is why we are alluring these youths with the stories in the youth meetings. और इसलिए यूथ मीटिंग में हम इन जवानों को इस तरीके से कहानियां सुना के खींचते हैं। In group sessions in Chennai, what we are conducting in Chennai, group sessions, 4 stories will be there. और चेन्नई में जब ग्रुप सेशन चलाते हैं उनमें 4 कहानियां होती हैं। That's how we are teaching them. और इसी प्रकार से हम जवानों को सिखाते Because हैं। their mindset is stuck on that thing. क्योंकि इनकी मानसिकता उस कहानी पर टिकी हुई है। Looking for a good stories in these अच्छी days. कहानियां सुनना चाहते हैं। Dear ones, the word of God is not a story. लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहानी नहीं It's है। not a fable. वो कोई कथा कहानी नहीं It's है। truth. ये सच्चाई है। The truth, you shall know the truth and the truth shall make you free. सच्चाई को जानोगे, सच्चाई आपको आजाद करेगा। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। So by this, by the word of God, our faith grows. और परमेश्वर के वचन से विश्वास बढ़ता है। Secondly, John 8:32 says we will be set free by the truth. और यूहन्ना 8 उसका 32 वचन में हम सच्चाई के द्वारा आजाद किए If we जाएंगे। read the word of God, we will be set free. हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो हम छुटकारा पाएंगे। Thirdly, John 17, chapter 17th verse, sanctification comes through this word of God. यूहन्ना 17 उसके 17 वचन में परमेश्वर के वचन से हमारे अंदर पवित्रता आती है। शुद्धिकरण. शुद्धिकरण आता है। When we read the word of God, we will be sanctified thoroughly. जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं पूरी तरीके से हम शुद्ध हुए जाते हैं। Proverbs 2nd chapter 6th verse says we become wise by reading the word of God. नीति वचन 2 अध्याय 6 वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हम बुद्धिमान बन जाते हैं। And lastly, John 6:68 says we receive eternal life. आखिर में यूहन्ना 6 उसका 68 हम ये परमेश्वर का वचन पढ़ने से अनंत जीवन को पाते हैं। This is very limited thing I told you. ये बहुत ही एक सीमित बात मैंने आपको There बताया। are so many blessings we can receive when we go through the word of God. यदि हम परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ेंगे तो उससे हमें असीमित आशीष पाएंगे। It's kind of sea that we need to go through it, and we'll find so many pearls and the precious things. ये एक समुद्र के समान है, हमें उसमें डुबकी लगा के कई सारे मोतियों को हमें ढूंढना होगा। But we must go through the word of God. लेकिन हमें परमेश्वर के वचन से जाना होगा। A person, a believer, a servant of God who doesn't go through the word of God, who doesn't read the word of God, will never be a part of the never be a part of the kingdom of God. कोई भी व्यक्ति विश्वासी परमेश्वर के सेवक लोग यदि परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं वो कभी भी अनंत जीवन का भागी नहीं होगा। If you lack that word in you, यदि ये वचन आपके जीवन में कमी दिखाई देता dear है, ones, you are not meant for the kingdom of God then. तो प्यारे लोगों आप परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं बने हैं। We don't have time to read the word of God. हमारे पास परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। कहाँ है समय हमारे पास? Where is the time to read the word of God? हमारे पास परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए समय कहाँ है? We have to take a time to read the word of God. लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हमें समय निकालना चाहिए। If you don't read the word of God, dear ones, you are dead ones. There is no life in you. यदि आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते तो आप मरे हुए लोग हैं, आपके अंदर कोई जीवन नहीं है। Jesus, the word of God says Jesus is that word. और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो वचन And है। there is life in Jesus. और यीशु में जीवन If है। you read the word of God, there is life in you. यदि आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे तो उसमें अंदर जीवन And if है। you don't read the word of God, you're a dead one. यदि आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते तो आप मरे हुए हो। This is the blessing that we receive in these days. और इन दिनों में हम जो आशीष पाएंगे ये वही आशीष है। This is the experience that we need to seek back in these days. इन दिनों में यही अनुभव का हमें खोजना चाहिए। God should help us in the coming days. परमेश्वर आने वाले लोगों हमें मदद करना चाहिए। जिन तेरी सारी सच्ची सबके लिए भी वेद अच्छे वचन तेरी सारी सच्ची सबके लिए भी वेद अच्छे मेरे परख लिया अंगली वो बना मैंने परख लिया
ताली बजा के गाइए, सब लोग ताली बजा के गाइए। मैंने फर्क लिया उनके लिए वो भला, परमेश्वर के प्यारे लोग, उस विश्वास को अपने जीवन में झूठ में बदलने मत दो। अपना जीवन को झूठा होकर प्रभु के सामने मत दिखाइए। आपका विश्वास को झूठ में परिवर्तन होते हुए देखते, वो झूठ अगर देखा जाए तो वचन कहता है कि शैतान की ओर से झूठ, वो झूठ का पिता है। अगर आपका जीवन सच में एक विश्वासी के तौर पे एक झूठा हो चुका है, तो फिर आप किसकी संतान है करके आप देख लेना। हमारा विश्वास बढ़ते जाना चाहिए। हमारे विश्वास में किसी भी प्रकार की आशंका नहीं होना चाहिए। हमारे विश्वास में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास अटल विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास परमेश्वर पे ऊपर मजबूत विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास हमारे जीवन में छुटकारे और चंगाई को लेके आना चाहिए। प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का संदेह, सवाल या कोई भी प्रकार का एक विरोध का, एक भेदभाव का, एक कोई भी काम हमारे जीवन में नहीं रहना। इन दिनों में प्रभु हमारे मदद करना चाहिए। इस झूठ के अनुभव में आने से निकलने के लिए प्रभु बहुत विश्वासियों को मदद करना चाहिए। प्रभु इस झूठ के जीवन से निकलने के लिए हमारे विश्वासियों को, हमारे जवानों को प्रभु मदद करना चाहिए। समर्पण करते हुए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. इन अंतिम दिनों में प्रभु के वचन का सहारा लेते हुए, प्रभु के वचन को अपने जीवन के अभ्यास में लेके आते हुए, उसके अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की आमद के लिए तैयार होने के लिए भी प्रभु मदद करना चाहिए। इसलिए भी हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. आया वो सारे प्रिय लोगों को प्रभु ने आशीष किया, दिया वो चंगाई छुटकारे के लिए भी हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. आने वाले दिनों में प्रभु हमारे साथ रह के हमें संभालना, अपने हमारे आत्मा प्राण शरीर प्रभु के हाथों में अर्पण करते हुए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर को सारी आदर मान महिमा देते हुए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. आसमानी बाम शुक्र और तारीफ करते हैं खुदावंद, सुबह के वक्त तेरे पवित्र हसूरी में हम सबों को खुदावंद इकट्ठा किया। जब से हम आए तेरे हसूरी हमारे बीच में रहा, तुझ में आनंदित और मगन होने के लिए, खुदावंद नया सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, अभिषेक को प्राप्त करने के लिए खुदावंद प्रभु दिए सारे आशीषों के लिए हम शुक्र करते हैं। खुदावंद इस सुबह को कहते प्रभु जी अपने वचन के द्वारा अपने लोगों के साथ बातचीत किया, सुने वचन को मुताबिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद इन दिनों में खुदावंद हमारे दिया जलते रहने दे खुदावंद प्रभु, और खुदावंद यदि हमारे अंदर की दिया ये ज्योति नहीं तो खुदावंद बड़े अंधकार में हम फंस जाएंगे। खुदावंद अंतिम दिनों में आए हैं खुदावंद प्रभु, इस अंधकार से सब बचने के लिए खुदावंद ये दिया हमारे जीवन में जलते रहने के लिए प्रभु सहायता कर। दिया जला कर खुदावंद जिन बातों को उन्होंने नष्ट किया, खो दिया, खुदावंद इन बातों को खोज करने के लिए, फिर से प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद जैसे तेरे वचन से सुना है खुदावंद पवित्र शास्त्र को खुदावंद हमने खोज करने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए हम विनती करते हैं। खुदावंद इन दिनों में ज़्यादा वचन
वचन पढ़ने के लिए, ध्यान करने के लिए प्रभु सहायता कर। ये वचन हमारे अंदर खुदावंद प्रभु महान कार्य कर सकता है। ये वचन हमारे अंदर खुदावंद सृष्टि कर सकते हैं। ये वचन के अंदर बड़ी सामर्थ्य है खुदावंद प्रभु, हमें पूरी तरह पवित्र कर सकते हैं खुदावंद। इस वचन का सहारा लेकर जीने के लिए प्रभु सहायता कर। इस वचन को पढ़ने से खुदावंद विश्वास हमें मिलता है खुदावंद। इसलिए प्रभु जी इन दिनों में हम सच्चे विश्वासी बनकर जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता कर खुदावंद। विश्वास को बहुत से लोग नष्ट कर रहे हैं खुदावंद, तेरे वचन पर संदेह करते हैं, अविश्वास करते हैं खुदावंद। इन सब बातों को दूर छोड़कर खुदावंद विश्वास में स्थिर करने के लिए खुदावंद झूठी बातों पर ज़्यादा विश्वास ना करते हुए खुदावंद परमेश्वर को खुदावंद सच्चे दिल से खुदावंद परमेश्वर के सच्चे वचन को विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए खुदावंद और बलवंत बनने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए इन दिनों में खुदावंद ज़्यादा वचन पढ़ने के लिए, ज़्यादा वचन पर मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए खुदावंद रात दिन तेरे वचन पर ध्यान करने के लिए हर एक लोगों को खुदावंद जवानों को सब खुदा सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद। इस पवित्र शास्त्र में खोज करते हुए खुदावंद नित्य जीवन प्राप्त करने के लिए, यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए हमें सहायता कर खुदावंद। इस वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा प्रभु जी हम बलवंत होने के लिए सहायता कर। बलवंत लोगों के अंदर से मिठास निकले है खुदावंद प्रभु जी, इसलिए हम बलवंत बनने के लिए सहायता कर। जीवन में कमजोरी दुर्बलता पाए जाने से जो जीवन पूरा खड़वाहट क्रोध से भरे रहेंगे खुदावंद, इन सब बातों को दूर करके खुदावंद हम आत्मा में खुदावंद और तेरे वचन में विश्वास में बलवंत होकर मिठास में खुदावंद दिए जाने के लिए प्रभु औरों के लिए खुदा हमारा जीवन आशीष का खान बनने के लिए सहायता कर। और भी बलवंत बनकर तेरे राज्य को खुदावंद प्राप्त करने के लिए मैं योग्य बना दे। इस मीटिंग में जितने लोग नहीं आ सके खुदावंद उन्हें भी आशीष कर। जो लोग बीमार है, कमजोर है खुदावंद तेरे वचन सामर्थ्य को भेजकर चंगाई दे खुदावंद प्रभु जी। तेरे वचन पर विश्वास करके खुदावंद चंगाई को प्राप्त करने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए हम विनती करते हैं। झूठी बातों को पीछे नहीं, झूठे सहारा लेते हुए खुदावंद नहीं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर खुदावंद तेरे खोड़े खाने से चंगाई मिलती है खुदावंद। इस वचन पर विश्वास करके चंगाई पाकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता कर खुदावंद। आए हुए सारे लोगों के साथ प्रभु बर्ताव किया, बातचीत किया। ये वचन हमारे जीवन के अंदर कार्य करने दे। वचन के आधार पर जीवन बिताने के लिए सहायता कर खुदा। तेरे लोग वापस आएंगे सही सलामत घरों में पहुंचने के लिए मदद कर। बड़े गर्मी से खुदा बचा कर खुदा वचन के आधार पर जीवन बिताकर हमारे यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, उससे मिलने के लिए, उससे राज्य को प्राप्त करने के लिए खुदा हमें योग्य बनाने के लिए हमारे आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथों में अर्पण करते हैं। पवित्र कर, जल्द आमद के लिए हम सबको तैयार कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चलो धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे पिता यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता उसकी दूसरी आमद तक हम सब के साथ होती रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।